ہلو ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمد للہ. کون؟ مولانا اصغر علی صاحب واحدی بول رہے ہیں جی کھنڈوا سے. جی محمد سمیر رضا حشمتی بات کر رہا ہوں جی. کہاں سے؟ پلوی شریف سے. جی حضرت کسی نے آپ کی ایک ریکارڈنگ گوش گزار کروائی تھی کہ آپ نے کہا کہ نفس تعزیہ ناجائز ہے. جی. نفس تعزیہ ناجائز ہے. یہ لوگ کس نے بھیجا، کیا بھیجا؟ ہم کو پہلے بھیجیے، ہم سنیں گے تو بتائیں گے کہ ہماری آواز ہے کیا ہے. کہ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس وقت نقشہ روضہ امام علی مقام بھی نہیں بنانا چاہیے. آپ کو کس نے کیا کہا؟ جی آپ وہ کو تو کس کہا نے ہے. کیا کہا؟ اگر یہ خبر غلط ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اگر غلط. یہ خبر آپ تک پہنچی ہے تو ہم کو مخبر صادق کا نام و پتہ بھیجیے پہلے، اور آپ تک کیسے پہنچا ہے وہ بھیجیے پہلے، ہاں تب آگے کوئی بات ہوگی. نہیں یہ بات آگے بات حضرت یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ آپ تک یہ بات پہنچی ہے؟ آپ صاحب معاملہ موجود ہیں اور فون سے بات ہو رہی صاحب معاملہ سے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ تک یہ بات پہنچی ہے؟ ہاں مجھ تک پہنچی ہے حضرت، تبھی تو میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں کہ یہ بات جی صحیح ہے کہ غلط. آپ سے تصدیق کے لیے فون کیا ہوں میں. پہلے مجھے آپ بتائیے تو صحیح. میں بتایا تو ہوں حضرت کہ تعزیہ شریف کو رکھنا ناجائز ہے. یہ میری بات اگر آپ تک پہنچی ہے تو کیسی پہنچی ہے، پہنچنے کے کیا طریقے ہیں وہ ہم کو بتائیے. اب کون سی بات پہنچی ہے؟ آپ نے کہا کہ نفس تعزیہ، یہ جملہ آپ نے استعمال کیا ہے نا؟ نفس تعزیہ میں نے استعمال کیا ہے، اور ہاں آپ کا جو جملہ مجھ تک پہنچا ہے وہ یہ پہنچا ہے کہ نقشہ روضہ امام علی مقام بھی نہیں بنانا چاہیے. وہی تو نفس تعزیہ ہے نا. آپ ہمارے پاس بھیجیے پہلے. نہیں بھیجیے حضرت، کسی نے گروپ میں ڈالا تھا، آپ کیسے بتاؤں کس کا تھا، کس کا نام پتا ہے آپ کو؟ ہاں تو جو پہنچا ہے آپ تک وہی بھیجیے پہلے میرے پاس. نہیں آپ بتا سکتے ہیں نا حضرت کہ نہیں، جب تک آپ بھیجیں گے نہیں تب تک آگے کوئی بات نہیں ہو یہ سکتی. خبر جھوٹ ہے کہ سچ؟ آپ مفتی ہیں حضرت، بتانا آپ کا کام ہے نا. نہیں، آپ تک پہنچا ہے تو آپ کو بھی تو بتانا اپنا کام ہے. میں آپ کو بتایا تو ہوں حضرت. اب بطور سائل اگر آپ کو فون کیا ہوں تو آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھیجیے یہ بھیجیے. آپ ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام روضہ امام علی نہیں، آپ نے نفس تعزیہ کو منع کیا ہے. نفس تعزیہ میں اپنی آپ کی لینگویج میں کوئی بولا ہوں تحریر یا آپ کو کوئی آواز یا آپ کو کوئی میسج ہم تک پہنچا ہے؟ میں تو یہ میں آپ کو آپ تک بارہا کیا بتا رہا ہوں پہنچا کہ ہے وہ آپ ہمارے پاس یہ میں بھیجیے. اپنی بھاشا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس تعزیہ، تو نفس تعزیہ یہی ہے نا کہ نقشہ روضہ امام علی مقام. آپ کی جو بات پہنچی ہے وہ مجھ تک بارہا میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ آپ تک آپ کی جو بات پہنچی ہے. میری جو بھی بات آپ تک پہنچی ہے وہ آپ میرے پاس پہلے واٹس ایپ کیجیے. حضرت بڑا کھسیار ہیں آپ، تو آرام سے بات کیجیے نا. میں آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں. نہیں، میں میں آرام کوئی ہی سے جاہل بات نہیں ہوں کر رہا الحمدللہ ہوں رب العالمین. میں بھی عالم فاضل ہوں، افتاء کا کورس کیا ہوا الحمدللہ رب العالمین. جب تک آپ بھیجیں گے نہیں تب تک آگے کوئی بات چیت ہوگی نہیں. یہ شروع سے میں آپ سے بول رہا ہوں. یہ جو میرے پاس آپ کی خبر آئی ہے یہ صدق اور کذب ہے، کیا ہے یہ؟ ہلو زیادہ بات کر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ تک جو بات پہنچی وہ ہمارے پاس بھیجیے. زیادہ بات کہاں حضرت، آپ ایک آرام سے بات کیجیے جیسی میں کر رہا ہوں. اگر آپ بولے ہیں تو پھر بتانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، اگر آپ تک پہنچا ہے آپ نہیں بولے ہیں تو بھیجنے آپ میں منع کیا کر رہ جائے؟ سکتے ہیں کہ میں بولا ہی نہیں ہوں. نہیں، آپ نے پہلے آپ ڈائریکٹ سوال کرتے تو میں جواب دیتا. آپ نے یہ کہا کہ آپ کی باتیں ہم تک پہنچی ہے، اسی لیے میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی باتیں آپ تک پہنچی ہے، پہنچنے کے کیا طریقے تھے، کیا پہنچا ہے، وہ سارے ڈیٹیلز آپ میرے پاس بھیجیے، پھر آگے بات ہوگی. میں آپ سے اسی لیے فون کرا ہوں بات کرنے کے لیے کہ اگر آپ ناجائز و حرام کہتے ہیں نقشہ روضہ امام علی مقام یعنی تعزیہ شریف کو، چلو بیٹا، تو کن حوالوں سے کہتے ہیں، کن کتب سے ہم کہتے ہیں؟ فون میں بحث ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں آ جاؤں کھنڈوا؟ آپ نہیں، ہم آپ کو کھنڈوا ہم بلا رہے ہیں کیا؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں فون پہ نہیں کرتے ہیں تو میں کھنڈوا بھی آ سکتا ہوں بات نہیں، کرنے کے ہم لیے کو آپ سے. بلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور جو ہے کیا نام اس کا، تو پھر ایسے کر کے ایسے لوگوں کو بتانے سے کہ ناجائز ہے ناجائز، جب تک دلائل نہ ہو ہمارے پاس تو نہیں بتانا چاہیے نا. آگے کی باتیں بولنے کی ضرورت نہیں آپ کو. تم صادقین. آگے کی باتیں بولنے کی ضرورت نہیں آپ کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
कुरान आप क्या कह अपने रहा है? कौल में अगर सच्चे हैं, आप अपने कौल में, इन कुंतुम सादिकीन, आप अपने कौल में अगर इन कुंतुम सादिकीन। आप अपने कौल में अगर मैं सच्चे आपको बता हैं, रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बोले कि नहीं, 2 बात में जुमला खत्म है। हाँ मैं बोला हूँ तो आपने दलील क्या हमसे है, सवाल नहीं अगर किया नहीं है, बोला हूँ तो नहीं। आपने हमसे सवाल नहीं किया है, मैं कब कह रहा हूँ आपको? आपने मैं तो हमसे आपको डायरेक्ट बात ये करने, किया है कि आपने सीधी ऐसा बात, कहा है, हम तक पहुंचा है, अगर मैं पहुंचा है सीधी तो ही पहले बात करने भेजिए। को आपसे हूँ हजरत। क्यों आप लोगों को ऐसे गलत सलत मसाइल बता रहे हैं जब आपको दलाइल नहीं है आपके पास, चलो पढ़ो। और फिर फतावा रज़वी शीब का नाम ले रहे हैं, आपके फतावा रज़वी शीब में है। चलो पढ़ो। हेलो, फालतू बात करके कोई फायदा नहीं है आपसे सब। मैं फालतू बात कहाँ कर, अच्छा मतलब शरई मसाइल के बारे में गुफ्तगू करना ये आगे फालतू बात पढ़ो। है? नहीं आपको नहीं, अगर अगर फालतू बात है फिर आलिम बने क्यों है हजरत? आलिम किस लिए आप हैं? आप अगर अपने कौल में सच्चे हैं तो तो जो बात आप शुरू में बोले हैं उसको भेजिए, फिर आगे बात होगी। ये शुरू से मैं यही बोल रहा हूँ। शुरू से आप बताइए कि आप बोले कि नहीं बोले, हाँ या ना में फैसला कीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप मोती मस्जिद के इमाम साहब हैं, बयानात करते हैं, अपने पोस्ट, आपके पोस्टर वगैरह शाये होते हैं, हाँ उसमें मौजू भी दिए जाते हैं, फिर आपसे कोई फोन पे दरियाफ्त करे तो आप इधर की उधर बातें घुमाते हैं, और फिर वहां पे फतावा रज़वी शीब का हवाला देते हैं। तो आप मुझे भी दे दीजिए फतावा रज़वी शीब का हवाला कि कौन सी फतावा रज़वी जिल्द है, सफा क्या है, आला हज़रत ने क्या लिखा। सूफी कलीम हमसे हनफी साहब ने मुनाजरा का ऐलान किया, उनसे जाके बात करो लो अगर जरा जरूरत पड़ेगी तो। अगर मुझसे बात करनी है आपको मजीद आगे, ठीक है, सुनिए, तो आपने जो शुरू में दावा किया कि मुझ तक पहुंचा है वो आप मेरे पास पहले भेजिए। हजरत पहुंचा है तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर तो आप भेजिए मेरे सच्चे पास हैं पहले। अपने कौल में तो दलील दीजिए, अगर दलील नहीं है तो ऐसी फालतू बातें लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है हजरत। खरीदता है। आप इधर की उधर बातें घुमा के बच्चों को पढ़ाने में ये वक्त जाया कर रहे हैं, हाँ या ना में फैसला नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास दलाइल हैं तो दलाइल दीजिए, नाजायज होने के उसमें कि नाजायज है। अगर दलाइल नहीं है तो ना बोला करें, लोगों को गुमराह करके कोई फायदा नहीं है। बिना दलाइल के तकरीर होती ही नहीं है। हाँ तो दलील दीजिए ना फिर। हाँ तो आप पहले पहले आपने जो दावा किया है वो भेजिए। दावा दावा क्या होता है ये बताएं? दावा साहिब मामला से कर रहा हूँ हजरत, मैं कोई तीसरे उससे थोड़ी ना कर रहा हूँ। आपने ये मैं कहा आपसे है ये कि बोलने मेरे और रही पास सूफी पहुंचा कलीम की है। बात, तो सूफी कलीम को हम पूरा जवाब दे चुके हैं। पहन कर आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में। आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं ये थोड़ी ना कहूंगा आपने दावा करा है, दलील दीजिए किसने कहा। आप मुझसे सवाल कीजिए, अभी मैं जवाब देता हूँ आपको, अगर मेरे पास दलाइल है। हमें सवाल करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद आलिम हैं, हमें किताब से मसला निकालना आता है। नहीं निकालना आता है, और मसला हमारे निकालना, उसको समझना और दूसरों को आज भी बताना, ये बाहयात है। आसमान का फर्क है हजरत। ऐसे दलाइल जब ना हो तो ताज़ीम नाजायज और हराम नहीं कहते हैं या मना नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना हजरत? दूध के। हेलो, हाँ बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर दलाइल हैं तो दीजिए, नहीं मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको क्या कहा? आपने ये कहा कि ताज़िया आपने हराम कहा है, आपकी जो है आपने हराम तहरीर या नहीं कहा है। जो कुछ भी है नहीं वो आप हमारे पास, जो कुछ भी आपका आपके पास पहुंचा है आपने वो आप हमारे पास भेजिए। आपने नहीं कहा है, आप पहले तो हमारे पास भेजिए ना। आपने कहा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपके पास पहुंचा है क्या? आपने कहा है कि नहीं? नहीं, आपके पास पहुंचा है क्या? आपने कहा है या नहीं कहा है? आपके पास पहुंचा है क्या? कहा है। आप घबरा क्यों रहे हैं हजरत हाँ या ना में जवाब देने से? आपके पास पहुंचा है क्या? नहीं ये आम को बता देना, फतावा रज़विया में लिखा है, जब कोई आलिम फोन करे तो इधर की बात उधर घुमा के। हाँ आपके पास पहुंचा है क्या? अरे मैं बता तो रहा हूँ, जो पहुंचा है आपको बता तो दिया, किसने तो कहा, जो कैसे पहुंचा कहा। मेरे पास भेजिए ना। हाँ जो पहुंचा वो मेरे पास भेजिए। अरे मैंने आपको बताया तो है हजरत, कैसे पहुंचा आप कैसे नहीं व्हाट्सएप पहुंचा। कीजिए ना, व्हाट्सएप कीजिए जो क्या पहुंचा है, व्हाट्सएप अभी कीजिए मुझे। ऐसी कॉल पे आप रुके हुए हैं?
آپ واٹس ایپ کیجیے. دیکھیے اپنا واٹس ایپ ایسی کال پہ رکے رکے دیکھیے، پھر بات کرتے ہیں آگے. چلو 1 منٹ جسٹ رکیے، آپ واٹس ایپ اپنا کھولیے، دیکھیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے. بھیجیے. بھیج رہا ہوں. فون مت کاٹیے گا حضرت. فون کاٹیں کیوں؟ دیکھیے 2 چیزیں میرے پاس آئی تھی. جی ہاں اس میں کیا لکھا ہوا پڑھیے. آپ پڑھیے نا حضرت. آپ پڑھیے نے ابھی آپ. بھیجا، آپ نے کہا کہ میرے پاس بھیجیے، آپ سب مجھ سے کروا لیں گے، تو پھر آپ ہاں تو آپ اس میں جو لکھا ہوا وہ پڑھیے آپ. آپ پڑھیے نا. نہیں آپ کے پاس بھیجا گیا. بھیجا ٹھیک ہے بھیجا میرے پاس سنیے. ہاں آپ کے پاس بھیجا گیا. ہاں ٹھیک ہے اور آپ پہلے اس کو پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد پھر آپ میرے پاس فون کیے ہوں گے. ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھیے. کیوں آپ نہیں پڑھ سکتے حضرت؟ نہیں آپ نہیں پڑھ آپ سکتے نے ہیں. بھیجا ہے نا، آپ نے بھیجا میں نے ہے. کہا بھیجا آپ کو. ہاں میں نے کہا بھیجا کسی ہے کے آپ پاس کو. تو بھیجے ہیں آپ، یا آپ ہاں نے بھیجے ہیں؟ ہاں آپ ان کو پڑھیے کیا لکھا ہوا آپ ہے. تو پڑھیے، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. آپ پڑھیے نا حضرت. آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو نہیں آتا ہے جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ بغیر پڑھے آپ نے مسئلہ پڑھے بتا ہوں دیا. گے، آپ بغیر فون کیے ہوں گے تب نا. بغیر آپ پڑھیے، نہیں، جب میں آپ کو پڑھنے کے پتا بعد ہے، خود سمجھ جائیں گے کیا لکھا ہوا اس میں. آپ تو پڑھیے تبھی تو میں آپ کو سمجھاؤں لفظ و لفظ مانا. آپ پڑھیے اور خود پڑھ کر کے سمجھ لیجیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ مجھے سمجھا دیجیے پڑھ کے. جیسے آپ نے عوام کو سمجھایا ویسے آپ مجھے سمجھا دیجیے، مطمئن کر دیجیے مجھے کہ ہاں تاکہ رکھنا میں جیز و آرام ہے. پڑھیے. ارے آپ پڑھیے نا حضرت، کیا آپ کو نہیں آتا ہے پڑھنا؟ مفتی لگا رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا آپ لگاتے ہیں. نہیں آپ بھی مفتی کا کورس کر رہے ہیں نا تو آپ تو نہیں میں عالم اور کیا ہوا فاضل الحمدللہ، میرے ہیں. پاس سند ہے، پڑھیے اور پڑھ کر کے میرے پاس سمجھیے. سند ہے حضرت، میرے پاس سند ہے، باسند ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو ہم نے سنا تھا کیا مانگا یہ کہاں ہے؟ نہیں آپ نے کہا پڑھ رہے ہیں. نہیں میں پڑھا ہوا ہوں، بس سند ہوں آپ الحمدللہ. کو اردو پڑھنا آتا ہے تو اس کو پڑھے خود سمجھ جائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ارے بھائی حضرت آپ بولے ہیں، دعویٰ آپ کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کل ہاتھ برہانکم ان جو کنتم دعویٰ ہے اس صادقین. کی دعویٰ ہے اور دلیل بھیج دی گئی ہے آپ کو. آپ کیا پڑھ کے دلیل سمجھ بھیجی؟ لیجیے. آپ نے بھیجی ہے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا دلیل ہے، کیا دعویٰ ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ مروجہ اور غیر مروجہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ دعویٰ ہے آپ کا؟ آپ جو یہاں آپ کا لکھا ہے ہوا ہے اس نہیں؟ کو پڑھیے. ہے کہ نہیں؟ جو ہے کہ نہیں؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب حضرت کی ایسا اسکرین نہ جو آپ بولا تک کریں، پہنچی جب اس کو دلیل نہ پڑھیے ہو اور تو نہ سمجھیے. بولا کریں حضرت، دلیل نہ ہو تو نہ بولا کریں. اور پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بنا اجازت کے ریکارڈ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اگر آپ شریعت میں غلط مسئلہ بتانا بھی جائز میری نہیں ہے. بات سنیے. سنائیں. بنا اجازت کے شریعت یہ میں ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے. اچھا اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجیے گا، پہلی بات. دوسری بات شیئر کرنے کی سخت منع ہے، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. آخرت میں غلط مسئلہ بتانے کی بھی پکڑ ہوگی حضرت. ہاں وہ تو پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی اور آپ کو دلائل آپ کی کچھ پکڑ تو ہوگی. کچھ دینے سے، کسی کا ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے دلائل نہ دے کے عوام کو گمراہ کرنے کی بھی پکڑ ہوگی حضرت. میری بات سنیے. اگر ہم گمراہ کر رہے ہیں تو آخرت میں پکڑ ہماری ہوگی. تو ٹھیک ہے نا. آپ ہمیں بتا دیجئے، عوام کو تو نہیں میری بچانا بات ہے آپ سنیے کے نا. فتنے سے. آپ اگر ہم گمراہ کر رہے ہیں عوام ہے کہ کو تو نہیں تو بتانا ہے پکڑ ہماری حضرت، ہوگی. عوام کو تو، لیکن یہاں پر تو عوام کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. اگر عوام گمراہ ہو رہی ہے تو عوام کے ذمہ دار ہم ہیں. ہمارے بیان سے اگر عوام گمراہ ہو گئے تو اس کے ذمہ دار نہیں ہم ہیں. پھر ذمہ دار ہم بھی ہوں گے حضرت، کہ تمہیں پتا تھا، تم نے عوام کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ علماء سو ہیں. ہاں ذمہ دار اگر آپ ہیں تو آپ پڑھیے نا اس کو. تو آپ پڑھ دیجیے، دلیل آپ نے دینا، میں کیوں حضرت؟ یہ بتائیے، دلیل آپ ہے، آپ دعویٰ آپ نے کرا، دلیل آپ دیں گے یا میں دوں گا؟
आप कुछ पढ़े दावेदार लिखे कौन है? हैं? मैं हूँ दावेदार कि आप हैं ताजिए के? नहीं, ताजिए को नाजायज व हराम कहने वाले आप हैं कि मैं हूँ? दावा अगर आपका है कि मेरा है? हमने जो ताजिया को नाजायज कहा है, हम्म ठीक है ना, हम्म उसकी दलील आप तक पहुंच चुकी है, उसको नहीं पढ़ पहुंची लीजिए और है समझ हजरत, लीजिए। आपके जरिए पहुंची नहीं है। कौन सी ताजिया को कहा है? आप बताएं कौन सी ताजिया नाजायज व हराम है? इसमें साफ लिखा हुआ है, किसी तरह ताजियादारी की मदद करना कैसा है हाँ लिखा हुआ, पढ़िए। हाँ हाँ, पढ़िए, आप सही पढ़िए पढ़ रहा ना। हूँ। किसी तरह ताजियादारी की मदद करना कैसा है, हम्म इस सवाल के जवाब में तहरीर फरमाते हैं कि ये भी जायज नहीं अरे है, फारसी तो पढ़ इसलिए दीजिए कि हजरत, फारसी गुनाह पढ़ पर। दीजिए, जी फारसी पढ़ दीजिए, हाँ, फारसी हम जायज नहीं, हाँ, आगे। ये भी जायज नहीं है। हम्म इसका मतलब यह है कि नहीं, ताजिया की पूरी मैं मदद करना दरअसल इसलिए जायज पढ़वा नहीं रहा है। हूँ, फारसी सुनना बड़ा अच्छा लगता है आप हमारे इसलिए। उस्ताद नहीं है कि हम आपको पूरी फारसी पढ़ के सुनाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा लगता है ना नहीं, फारसी सुनना। आप मुफ्ती हैं हजरत, पढ़ दीजिए आगे का। आपको फारसी, अरबी, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ना हो ना, आप आकर के दरसगाह में बैठिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। किसकी हाँ, दरगाह में? आपको जिससे इल्म हासिल करना हो नहीं, वहां जाकर पढ़ लीजिएगा, हजरत समझ आप पढ़ लीजिएगा। के सुना दीजिए। देखिए, मैं इतना जो है कॉल में बात नहीं करता हूँ, और इतना फालतू बातें करने की हमको मैंने आदत अभी नहीं है। फालतू बात की है। हाँ, ये और यहाँ पे हमको किस ताजिया का नहीं, जिक्र है? सुनिए चलिए मेरी चलिए, बात खैर सुनिए। आप मत पढ़िए, फारसी समझ में आ गया हमें। ये भी जायज नहीं है आपने कहा। चलिए इसके आगे हजरत, ये कौन सी ताजिए की बात हो रही है? मुरवजा ये की गैर मुरवजा? किताब में इस तरह कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे आप आलिम है हजरत? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो आपकी बातों से नहीं लग रहा कि आप आलिम है, हम मत मानिए आलिम, क्योंकि आप कह रहे हैं किताब में कुछ लिखा नहीं है। आप मत अब मानिए आलिम। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नाजायज हैं। ठीक है, आप मुझे दिखाइए कुरान में कहाँ लिखा है। आप मत मानिए आलिम। नहीं तो मुझे बताइए, इसमें गैर मुरवजा है कि गैर मुरवजा है? इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है सवाल के फिर जवाब आप में। इससे क्या समझेंगे? इसको ताजियादारी समझाएंगे। ताजियादारी कौन सी? ताजियादारी दो तरह की है, मुरवजा और गैर मुरवजा। अच्छा, गैर मुरवजा कहाँ लिखा हुआ, भेजिए मेरे पास। तो मुझे तो आप आए, आला हज़रत सरकार ने कई जगह लिखा है हजरत। भेजिए, हाँ भेजूं? भेजिए। अच्छा एक मिनट रुकिए बस, जिसमें सबर लिखा हुआ कि गैर मुरवजा जायज है, है। जिसमें लिखा हुआ गैर मुरवजा जायज है। आप भेज रहा हूँ हजरत, भेज रहा हूँ, सबर थोड़ा सा। ये हमने कूफी कलीम के लिए लिखा था, तहरीर। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे, आखिरत में पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, इस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, और न शेयर करने की इजाजत है, ठीक है। आखिरत में तो पकड़ ये भी होगी कि मुरवजा और गैर मुरवजा ना बोल के नहीं नहीं, अवाम को गुमराह करना। आपको ये हमने नहीं पता कि आला हजरत ने कहाँ लिखा है, और आप दावे बड़े बड़े कर रहे हैं कि मुरवजा और गैर मुरवजा। ये आपकी तहरीर है, हमको जो है किताब की स्क्रीन चाहिए। हाँ, इसमें हवाला ये दिया हूँ तहरीर हजरत, माँ सफा नहीं की नहीं, दिया हूँ। हमको किताब की स्क्रीन चाहिए। अरे हवाला दिया हूँ, जरा आप भी उसमें निकालिए। कुछ भी हमको ये व्हाट्सएप के जो तहरीर आते हैं उसके हवाले की जरूरत नहीं, हमको किताब के हवाले चाहिए। अरे व्हाट्सएप की तहरीर नहीं है हजरत, उसमें हवाला माँ जिल्दो सफा के दिया हूँ। हमको किताब की स्क्रीन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। किताब की भी भेज रहे हैं, अभी देख के भेज रहे हैं किताब। जी जी। पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए कि मुरवजा के गैर आपकी बात मुरवजा। के जवाब हमको देने की जरूरत नहीं है, जवाब मुरवजा के जो गैर स्क्रीन मुरवजा, तो अवाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं हजरत आप? जो ये फतवा स्क्रीन में रज़विया लिखा शरीफ में हुआ आला है। हजरत ने लिख दिया है। आला हजरत ने तो कहीं नहीं लिखा है। हेलो हेलो, फालतू बातें बहस मत कीजिए हमसे, ठीक है ये ना। फालतू बात है हजरत। आप हाँ हाँ, ताजिया शरीफ को नाजायज और हराम कह दें मादल्लाह रब्बिल आलमीन, और अवाम को गुमराह करें, और उसके बाद आपसे हमने कोई हमने दलील कहा पूछ ले, था, तो राय उलमाए हक ने कहा इख्तियार है, करने की हर उलमाए मुमकिन हक ने कोशिश कर कहा है, रहे हैं आप। उलमाए हक ने हाँ उलमाए हक ने कहे हैं। जी, हाँ, उलमाए हक कह रहे हैं, हमने नहीं कहा है। कौन उलमाए हक कह रहे हैं? नाम बता वो दीजिए मुझे। जो किताब में लिखा हुआ है, कौन सी किताब है? नाम तो बताइए उस किताब का। खुतबात मुहर्रम है, जो है फतवा रज़विया है। फतवा नहीं, फतावा रज़विया शरीफ है हजरत, क्योंकि वो जमा है ना फतवा की। थोड़ा सा फतावा रज़विया शरीफ। मोबाइल को करीब करके सुनिए। नहीं नहीं, आप रिकॉर्डिंग है कहिए तो आपको भेज दूं मैं। क्या चीज? रिकॉर्डिंग है, नहीं, भेज दूंगा, आप क्या बोले हैं? रिकॉर्ड की तो इजाजत ही नहीं है ना। हाँ,
रिकॉर्ड के तो हमने इजाजत दी नहीं आपको। आप नहीं दिए इजाजत अलग बात है, नहीं रिकॉर्डिंग की नहीं इजाजत नहीं लेना ये अलग बात है, उसको शेयर करना ये अलग बात है। नहीं खैर, नहीं, ये मसले की ये इल्लत को आप नहीं समझ पाएंगे अभी। ये इजाजत ही नहीं आपको शेयर करने की और रिकॉर्ड करने लाइए की, हम दिखाइए, बार बार कह रहे लाइए हैं। दिखाइए किस में लिखा है। मैं अपने बात को रिकॉर्ड करने की कहाँ इजाजत नहीं लिखा दे है, रहा हूँ आपको। कहाँ लिखा है? मैं जैसे नहीं दे रहा मुरवजा हूँ। और गैर मुरवजा नहीं लिखा हुआ है आपके मुताबिक, वैसे ही रिकॉर्डिंग का कहाँ लिखा है कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं? दिखाइए, मोबाइल के मसाइल शरिया को आप पढ़िए, मोबाइल के ताल्लुक दिखाइए से, ना हजरत, है कि दलील नहीं? दीजिए आप, मोबाइल के ताल्लुक से दलील आप पढ़ दीजिए सकते हजरत। आप तहरीर भी भेज दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं मैं तहरीर नहीं मानूंगा, मैं आपकी तहरीर भी मान लूंगा अगर कोई है तो, अगर उसमें हवाले दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ? नहीं, आप हमें ये बताइए कि मुरवजा और गैर मुरवजा उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप क्या समझे उससे? हमें आपके मुतलक, सवाल हमें आप आपके मुतलक सवाल का समझे हैं जवाब कि मुकय्यद समझे हैं उससे? हम आपके सवाल का आप जवाब देने मुतलक की समझे जरूरत हैं कि नहीं है। मुकय्यद समझे हैं? आप मुझे ये बताइए, आप अपने आप को मुफ्ती भी लगाते हैं, आपके इसमें मुझे लिख के आया था मुफ्ती खंडवा, मुफ्ती साहब खंडवा, ट्रू कॉलर में, और आप जरा सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमें आपको जवाब देना ही नहीं है ना। तो आप बोले ही क्यों हैं हजरत? आवाम को क्यों गुमराह कर हम रहे हैं? हमें आपको जवाब देना ही नहीं, नहीं है। जब जवाब देने की आपको सलाहियत नहीं है तो आप बोले ही क्यों हैं हजरत? आप कभी जुमा में आ जाइए खंडवा, ठीक है, अच्छा, और यहाँ के कमेटी जिम्मेदार से आप मिल लीजिए जिम्मेदार कि बोले हैं आप? नहीं, मेरी बात सुनिए। जिम्मेदार बोले हैं? मेरी मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं हाँ उन लोगों से आप मिल लीजिए। हाँ। तो हमने ये सुना है कि आपके इमाम साहब जो है ताजिया के ताल्लुक से इस तरह के बयानात किए हैं, हम किताब देखना चाहते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा। और तो जिम्मेदार के साथ आप आइएगा। तो आप और जिम्मेदारों की उससे बोलते हैं? हम तो कभी किसी जिम्मेदार के उससे नहीं बोले। जिसको भी जहां पे भी बोलते हैं बेफजली ताला अपने ऊपर बोलते हैं। नहीं किसी नहीं, जिम्मेदार को यहाँ जिम्मेदार हर से दलील नहीं लेते हैं कि वो जिम्मेदार से नहीं पूछिए, नहीं आप नहीं इससे पूछिए, उनसे पूछिए। बोल आप हर रहे हैं जिम्मेदार कल को कहेंगे आप वहाबियों के साथ इत्तेहाद के लिए कह दीजिए, तो आप कह देंगे जिम्मेदारों की उससे? देखिए, हमको पाँव और हाथ एक जगह से टकराने से मतलब नहीं है। नहीं नहीं हर नहीं, जगह का एक वसूल होता है, क्या ठीक है ना। उसूल होता है हजरत? उसूल हाँ, ये भी है, उलमा मसला यहाँ पे भी बयान करते हैं कि जिम्मेदारों की जो इमाम कमेटी के कहने पे मसाइल बयान करे, कमेटी के कहने पर चले, कमेटी का गुलाम हो, उसके इमाम के पीछे नमाज ही नहीं है। आप आ जाइएगा, सारी नहीं बातें नहीं, हो आप, जाएंगी। मैं अभी आप कह रहे थे कि मैंने बुलाया नहीं, अब आप कह रहे हैं आप आ जाइए। आप हाँ, आप एक आ बात पे जाइए। तो रहिए हजरत कि आप करना क्या चाहते हैं। आप उलमा अवाम का, आला हजरत का नाम ले लेके अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि आला हजरत ने नाजायज लिखा, और आला हजरत ने कहीं नाजायज नहीं लिखा। ता कयामत साबित नहीं कर सकते हैं हजरत आप आ जाइएगा। अभी और आप यहाँ दलील दे दीजिए मुझे हजरत। मुझे फोन में बात करने की आदत भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको हमें जवाब देना कोई फर्ज और वाजिब भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप जो है सख्ती के साथ हमने मना किया रिकॉर्ड करने का, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। शरीयत ये कहीं से कहीं तक जायज भी नहीं है दलील कि किसी की रिकॉर्डिंग बात को। आपने कहा हाँ, कि मुरवजा और गैर सुनिए तो, मुरवजा नहीं लिखी है, तो आप मुझे दिखा नहीं, दीजिए कि कहाँ मेरी पर बात कौन सी सुनिए। किताब में लिखा है कि आप रिकॉर्डिंग, लफ्ज बगैर रिकॉर्डिंग। आप बगैर इजाजत के रिकॉर्ड दलील, क्यों कर रहे हैं? दलील, दलील इसकी क्या है? ये तो अकल भी तस्लीम कर रही है, या दलील। तो किसी की अकल बात को ये हम भी रिकॉर्ड तस्लीम करके कर शेयर रही क्यों कि कर रहे माला हजरत ने वहां पे मुरवजा लिखा है कि गैर मुरवजा की बात चल रही है। ये तो हैं? आवाम भी समझ रही है, आप आलिम होके नहीं समझ रहे हैं। आप अभी अब कह रहे हो कि अकल भी तस्लीम कर रही है, तो वहां पे अकल तस्लीम नहीं कर रही है कि मुरवजा है कि गैर मुरवजा है। आप देख लीजिएगा, मैं ठीक है। देख लिया हजरत। मेरे ख्याल से ना आप पढ़े हैं और न ही आप देखे हैं, न ही समझे हैं। जो आया बक दिया। ठीक ठीक ठीक। खिताबत को आजकल के लोगों ने अपने घर की माजल्ला बांदी समझ लिया है कि जो मुंह में हाँ, आया हाँ, बक दिया। हाँ, हाँ। आप दलील दीजिए, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये कुरान आप कह आ रहा जा है, मैं आप थोड़ी आ ना कह रहा हूँ। जाइएगा। ये कुरान की आप आ आयत जाए है हजरत, कुरान की आयत। कम से आप कम आ कुरान की जाइएगा। तो मानिए, आप आ जाइएगा और दलील कम देख अज कम लीजिएगा। कुरान की तो मानिए। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आ- अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आप आ जाइएगा और दलील देख लीजिएगा। अरे आप हमें बता दीजिए हजरत, अभी बता नहीं नहीं, दीजिए। मैंने, हमें फोन पे बात आप करने की आदत बस नहीं है। इतनी देर से तो आप कर रहे हैं, इधर की बात उधर घुमा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमको फोन पे आपको बात जवाब करने देना ही की। नहीं है ना। तो हमें आपको जवाब देना ही नहीं है। ये कहिए कि जवाब है नहीं,
जवाब देना नहीं, जवाब जवाब है देना ही नहीं, नहीं है। जवाब है नहीं। आप आवाम को गुमराह बना सकते हैं, कर सकते हैं आवाम को गुमराह। जब कोई पकड़ करे आपकी तो आप राह फरार इख्तियार करने की हर मुमकिन कोशिश करें। जितना बोलना है बोलिए, मना नहीं है। नहीं आप बताएं ना हजरत, मैं आपसे नहीं नहीं बदतमीजी किया हूँ ये बताएं। नहीं, बदतमीजी का पहले आपने बिना इजाजत के मैं बदतमीजी रिकॉर्ड किया क्यों कर आपसे, रहे हैं? मैं बदतमीजी किया आपसे, बिना इजाजत के मैं रिकॉर्ड बदतमीजी क्यों किया। कर रहे हैं नहीं आप? आजकल के कुछ लोग होते हैं ना कि ये हमसे बदतमीजी कर दिया, बदतमीजी कर नहीं नहीं, दिया, इसने हाँ, गाली दी, बिना तो इजाजत उसकी के आपने सबूत होना रिकॉर्ड, चाहिए कि हमने गाली नहीं दी, आपसे और हजरत से बात करी है। लेकिन उसके हाँ बिना, बावजूद भी आप तो खिसिया भी गए, मैं तो खिसियाया भी नहीं हूँ पूरी रिकॉर्डिंग में। यहाँ खिसियाने की बात ये है कि आपने ये जो कहा है कि आप जो इस तरह की बातें थे, फिर आप भेजने से मत इनकार कर रहे थे, हाँ ठीक है ना, इसलिए हमने नहीं इस मामले हजरत, में थोड़ी उलमा सी ये को होता जरा थोड़ा ठंडा मिजाज रहना चाहिए और साथ में दलील रखना चाहिए कि कोई बोले है। तो दलील तो दलील दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, दलील तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत, नहीं है दलील आपके तो एक पास, नहीं अगर बल्कि है 50 दलील मौजूद है। बस हाँ, हजरत बस। दलील एक नहीं बल्कि तो 50 मुझे दलील मौजूद है। 50 मत दीजिए, लेकिन मुझे हमें सिर्फ एक हमें दे दीजिए। आपको देना नहीं चाहते हैं फिल वक्त फोन पे, आप आ जाइएगा, देख लीजिएगा। आप देना नहीं चाहते, ये है नहीं हजरत। और रही बात रिकॉर्ड की, है कि नहीं, तो रिकॉर्ड हमें फोन में बात करने की आपके आदत पास नहीं है। दलील नहीं है, मेरी ये बात आप सुन कह लीजिए, दीजिए कि मेरे पास दलील नहीं है, मैंने जो बोला है वो मैं समझ नहीं पाया हूँ। मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। सुनाइए। हमें फोन पे बात करने की आदत नहीं है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फोन पे हम बहस मुबाहसा भी करते नहीं है। आपसे इतनी बात होगी, वरना 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा हम फोन में बात नहीं करते। नहीं दूसरी बात, मैं भी मेरी बहस बात सुनिए, मुबाहिसा नहीं करता हूँ हजरत। मेरी बात, तीसरी बात यह है कि आपको रिकॉर्ड को शेयर करने की मुकम्मल तौर पर इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। आखिरत में मैं आपकी पकड़ दलील करूंगा, हजरत, करूंगा, दलील करूंगा। दलील मैं भी आपकी पकड़ करूंगा कि आपने बगैर दलील के आवाम को गुमराह करने की हर मैं मुमकिन कोशिश आपको करी है। दलील, मुझे मैं दलील दे आपको, दीजिए दोनों बात हाँ, की। रिकॉर्डिंग दलील आप दिखा दीजिए कि किसी किताब में लिखा है कि रिकॉर्ड के करने की, उसको शेयर करने की इजाजत लेनी पड़ेगी दलील के साथ। अगर आप कहते हैं कि असल अकल तस्लीम करेगी, तो अकल ये भी तस्लीम कर रही कि आला हज़रत ने मुरवजा लिखा है कि गैर मुरवजा लिखा है। आपको दलील चाहिए किताब से, ताजिया के ताल्लुक से आप आ जाइएगा, तो मुझे ठीक दलील है ना। आप अभी फोन से क्यों नहीं दे सकते, क्या मजबूरी है नहीं, हजरत? आप फोन पे हमको बात करने की आदत नहीं है ना, आप इतनी देर आमने से कर सामने रहे हैं, बात करने आपको की आदत इतनी देर से आप बात कर रहे हैं। अगर यही बात आप 2 मिनट की कर सकते थे, दलील बता देते है। और बात खत्म करते, फोन लेकिन आप फोन 30 मिनट करीब होने वाले हैं, 27 मिनट और 30 सेकंड 31 सेकंड हो चुके हैं आपको बात करते करते, लेकिन आप दलील नहीं देना चाह रहे हैं हजरत। दलील हम मोबाइल में नहीं देना चाहते हैं, आप इसलिए कुछ दलील लोग की, आप देना नहीं चाहते, आपके पास दलील है नहीं। आप नहीं नहीं, सीधी आप सी आ बात जाइएगा, कीजिए कि मेरे पास दलील है ही नहीं। आप आपको आ इतना ही नहीं जाइएगा, पता कि आला हज़रत ने मुरवजा के गैर मुरवजा, आप पूछ रहे हैं कि आला हज़रत ने यहाँ पे कौन सा लिखा है। आप आ जाइएगा। नहीं आप वहाँ पे पूछ रहे हैं, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी की बात ये लगी कि आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा, मुरवजा लिखा कि गैर मुरवजा लिखा है। तो फिर आप बहुत सारी ऐसी चीजों को पूछेंगे, कुरान में ये कहाँ लिखा है। आप ईद मिलाद नबी का पूछेंगे, कुरान में सरहतन तौर से कहाँ पे लिखा है। आपको हर सवाल का जवाब नहीं मिल आप मुझे जाएगा, ईद मिलादुन आप आ नबी का जाइएगा। फिर ईद में आप तो ऐसे ऐतराज ईद मिलादुन नबी भी करेंगे कि हदीस और कुरान में कहाँ ईद मिलादुन नबी का लफ्ज है। अब देखने वालों को मिल जाता है, नहीं देखने वालों को नहीं मिलता है। ऐसी मुरवजा और गैर मुरवजा का फर्क है कि देखने वाले और समझने वाले समझ गए। आला हज़रत को समझने के लिए इल्म के साथ साथ इश्क की भी जरूरत रहती है हजरत। और जिनके पास दोनों ना हो और दोनों से कोरे हों, इश्क और इल्म से, फिर उनको नहीं समझ में आता है ना हजरत। तो आप इतनी देर से बात कर रहे हैं लेकिन आप एक दलील नहीं दे पा रहे हैं। दलील तो एक नहीं 50 दलील है। तो एक 50 में से हजरत एक दे दीजिए मुझे, आप आ जाइएगा, आप एक लेकिन मुझे दे इंशाल्लाह आपको दीजिए, दलील मिल जाएगी, आप एक दे दीजिए ना अभी फोन पे। दलील मिल 49 जाएगी, देखिए, आप आ 49 जाइएगा। बाकी रखिए, आने के बाद लेता हूँ, अभी एक दे दीजिए ना हजरत। जी, आप कह रहे हैं 50 है तो 50 में से एक दे दीजिए और 49 बाकी रखिएगा। नहीं 49 आने नहीं, के बाद ले लूंगा, एक फोन पे दे दीजिए। नहीं, आप आ जाइए, हम आपको दे देंगे मैं जवाब। कह तो रहा हूँ हजरत, मैं आने के बाद अब से 49 दलील, आपने कहा 85 हैं, तो 85 में से एक दलील दे दीजिए, 49 बाकी रखिएगा। जब आऊंगा तो 49 दलील आपसे तब ले लूंगा। क्या बोलते हैं हजरत? हेलो
جو مجھے بولنے کا تھا میں نے بول دیا ہے. نہیں تو میں بتا تو رہا ہوں حضرت، آپ کے پاس جب دلیل نہیں ہے تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے پھرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مروجہ اور غیر مروجہ دونوں کو ناجائز لکھا ہے؟ آپ کھنڈوا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بنا دلیل کے ہم بولتے ہی نہیں ہے. تو دلیل ایک دے دیجیے. آپ نے کہا 50 ہیں تو ایک دے دیجیے، 49 باقی رکھیے آپ اپنے پاس، وہ آ کے لے لیں گے. جب آئیے گا تب ہم انشاءاللہ پوری جو ہے ایک آپ کو دلیل دے مل دیجیے جائے. حضرت، ایک دلیل. کیوں حضرت؟ آپ مجھے تو حیرانی یہ آپ کو غیر مروجہ اور غیر مروجہ کا فرق نہیں پتا ہے. وہ تو آپ ان کے مابین امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں. جب آمنے سامنے آؤں گے نا تو سارے جو ہے راستے نکل جائیں گے. نہیں مروجہ کسے کہتے ہیں، غیر مروجہ کسے کہتے ہیں، تعزیہ کی حقیقت کیا ہے اور کیا ہے، سارے کے سارے راستے اور سارے کے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گے. نہیں رکھ پائیں گے. ابھی آپ فون پہ ایک نہیں دے پا رہے ہیں تو سامنے کیا؟ یا میرے خیال سے آپ تیاری کریں گے اب. دیکھیے یہ جو ہے آپ کا کتاب ہے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں. بھیجیے، آپ بتا دیجیے، میں دیکھ لوں گا یہیں پر. آپ نہیں، میں اپنے موبائل ریکارڈ کے بارے میں ابھی میں کمرے میں ہوں، اس لیے کہ مسجد اذان ابھی 5:10 پہ ہے. اچھا ہاں پڑھیے اس میں کہ بلا اجازت موبائل کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا کیسا ہے. کتاب کا نام؟ ایک منٹ، کتاب کا نام بھی آپ کو مل جائے گا. مصنف کا نام مصنف کا نام بھی میں نے آپ کو کتاب کے اسکین بھیج دیا اوپر. مکتبہ رشیدیہ دیوبند. نہیں ہے حضرت؟ ایک منٹ نکال رہا ہوں مصنف کا نام جی ہے، مصنف کا نام نہیں ہے اس میں. بھیج رہا ہوں نا. ہاں لیجیے مصنف کا نام دیکھ لیا. اب کون ہے، ان کی کیا مانی جائے، ایک بار پڑھ لیں پہلے. لکھا ہوا ہے موبائل فون کے ضروری مسائل، مصنف محمد طفیل احمد مصباحی. رکیے حضرت پڑھ لوں، میں بھی پڑھ ایڈیٹر لوں. ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی. ٹھیک ہے نا. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آج کل موبائل پر ہو رہی گفتگو کو بلا اجازت ٹیپ کرنے کے رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. موبائل پر ایک بے تکلف دوست سے ہر طرح کی باتیں ہوتی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے اور دینی و علمی مسائل پر گفتگو بھی ہوتی ہے. دینی مسائل پر مبنی گفتگو کو بلا اجازت ٹیپ کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نجی زندگی سے متعلق راز و نیاز کو بعد جنہیں ٹیپ کرنے سے افشار اور باتوں کو ہے کہ نہیں بلا اجازت دینی مسائل پر مبنی گفتگو کو بلا اجازت ٹیپ کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. جی ہاں تو آپ نے اجازت تو ٹیپ تو کیا نا، لیکن شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے نا میرے طرف سے. لیکن ارے شیئر، اس میں شیئر کا دکھائیے مجھے کہاں ہے کہ شیئر ضروری ہے کہ یہ بات لکھی بھی ہو. ابھی آپ تو کہہ رہے تھے مروجہ اور غیر مروجہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں تو سب لکھا ہوگا فتویٰ رضویہ میں، سب فتویٰ رضویہ میں لکھا ہوگا. آپ نے یہ دلیل بھی بھیجی ہے اپنے اس میں کہ اس میں تو آپ کو یہ ہے کہ دینی مسائل پر مبنی گفتگو کو بلا اجازت ٹیپ کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن نجی زندگی سے متعلق آپ کی اور میری یہ نجی زندگی کا معاملہ تو چل نہیں رہا ہے. سنیے میری بات، بلا اجازت ٹیپ کرنے میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے، وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن میرے طرف سے اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تو میری گفتگو کو میرے طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ کریں یا شیئر کریں. آپ کریں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ذمہ دار آپ نے خود ہی دلیل حضرت کہ کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. ہاں تو یہ آپ نے بلا اجازت سے ٹیپ کیا، آپ تو شریعت میں پکڑ آپ کی نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ شیئر کریں گے تو پکڑ ہوگی. دکھائیے کہاں لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کوئی حجت ہے. ہاں میری بات کو آپ دوسری جگہ شیئر کریں گے تو آپ نے آپ کی نجی زندگی کے معاملات اگر میں دوسری جگہ شیئر کروں تب پکڑ ہوگی. یہ تو شریعت مطالعہ کا معاملہ ہے. میرا کام بتانے کا تھا، آپ مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے، اثر کے اذان کا وقت ہو رہا ہے. نہیں حضرت آپ مجھے دلیل دیجئے ورنہ گمراہ مت کیجئے قوم کو. نہیں دلیل نہیں، کیا نماز چھوڑ دوں کیا آپ کے لیے؟ 5:10 پہ نماز ہے ہمارے یہاں. 5:10 پہ ہے حضرت، تو 34 منٹ ہو چکے ہیں بات کرتے کرتے. آپ نے ایک دلیل نہیں دی ہے، سوائے عوام کو گمراہ کرنے کے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. دلیل کے لیے آپ کھنڈوا آ جائیے گا، کھنڈوا آ جائیے گا.
कोई सी किताब में लिखा है कि दलील के लिए सामने आना जरूरी है, फोन से नहीं मालूम कर सकते? फोन में हम बात नहीं करते ज्यादा, ये तो पहली बार इत्तेफाक की आपसे बात हो गई इतनी। 35 मिनट, आप 34 मिनट से बात कर रहे हैं, 35 मिनट बस चंद सेकंड में 35 मिनट होने वाले हैं, आप 35 मिनट में एक दलील नहीं दे पाए हैं हजरत। अब आपकी इल्मी लियाकत क्या होगी? आप जब मुरवजा और गैर मुरवजा में माबैन दोनों के इम्तियाज करने से कासिर हैं तो आप क्या ही आप जितना चाहो उतना बोले, हम मना नहीं कर रहे हैं। हजरत हेलो, हाँ बोलिए। एक दलील दे दीजिए हजरत, एक दलील के नाजायज हराम है। दलील तो 50 है। अरे फिर वही बात कर दी आपने, 50 है, 50 में से एक दे दीजिए, 49 बाकी रहेंगी। आप आ जाइएगा। मैं कह रहा हूँ 49 दलील बाकी रहेंगे, एक दे दीजिए। हेलो, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूँ हजरत, मस्तूरात की बोलने की आवाज आ रही, थोड़ा सा इधर हट जाइए। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है। नहीं, असल में ऐसा है जी हजरत, हमें फोन में बात करने की आदत नहीं है। 35 मिनट तो हो गए हजरत, मुकम्मल 36 मिनट होने वाले हैं। नहीं पता, कुछ लोगों में ये बहुत बुरी आदत रहती है कि रिकॉर्ड करके शेयर कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। हालांकि शेयर करने के लिए किसी की बात की इजाजत देनी चाहिए, निजी जिंदगी की, ना कि शरीयत मुतारा के मसाइल में। या टेप के मुतालिक जिक्र है तो रिकॉर्ड कर जाएगा, शेयर के जिक्र नहीं है यहाँ पे। शेयर, अरे आप अभी कुछ आप शेयर नहीं कर सकते हैं। कभी कुछ कहते हैं आप, कभी कुछ कहते हैं, आपको खुद समझ में आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं? आपने खुद ही दलील भेजी है अभी हजरत, अब फिर आप उस दलील से भी मुकर रहे हैं, बताइए। शेयर की बात कर रहा हूँ। आप मुरवजा और गैर मुरवजा में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या ही हजरत। हेलो, बस और कुछ आदन होने वाली है हमारे यहाँ। कितने अभी आप कह रहे थे 5-10 पे जमात है? आज तो 5 बजे तैयारी नहीं करेंगे? 5-10 पे नमाज है। 5-7 तो हो गए, 8 हो गए हैं। कितने मिनट में आप वुजू कर लेते हैं? 1 मिनट में? 5-10 पे नमाज है। 5-8 हो चुके हैं, तो 1 मिनट में आप वुजू करके मस्जिद में पहुंच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बावजू रहने की आदत भी है। अच्छा, तो बावजू है आप, 1 मिनट में मतलब पहुंच जाते हैं मस्जिद? 30 सेकंड में पहुंच सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। 30 सेकंड में कहीं पहुंच सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो फिर अभी बहुत टाइम है, आप एक दलील दे सकते हैं इतनी देर में। दलील के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे पास, इसलिए कि आपने बिला इजाजत के मेरी, है कि नहीं, आपने रिकॉर्ड किया है, तो ये अच्छी बात नहीं। जायज है। आप ही का हवाला जो आपने अभी मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है, उसके बकौल मैं फिर से आपको पढ़ के बता, दीनी मसाइल पर मबनी गुफ्तगू को बिला इजाजत टेप कर लेने में शरअन कोई हर्ज नहीं। ये आप ही ने जो किताब भेजी है, मोबाइल फोन के जरूरी मसाइल, मुसन्निफ मोहम्मद तुफैल अहमद मिसबाही, ये उसी का हवाला मैं आपको दे रहा हूँ जो अभी आपने मुझे भेजा है। आपको तो रिकॉर्ड नहीं करना था, ये हर्ज नहीं, ये कोई हराम और कोई ये नहीं है। तो फिर क्या हर्ज है? आपको शेयर करने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना? हवाला क्या हुआ? शेयर करने की इजाजत नहीं, मेरी बात को बस हवाला, मेरी बात को शेयर करने की इजाजत ही नहीं है। नहीं, मसाइल आपकी निजी जिंदगी को शेयर करने की इजाजत नहीं है, ये तो मेरी बात, अगर आपको बहस करना हो, कुछ मालूमात करना हो, किताबें देखना हो, तो आप आ जाइए, खंडवा बात हो जाएगी। नहीं हजरत, आप इसमें नहीं दे सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं दे सकता हूँ मैं। क्यों? ऐसे नहीं, ऐसे क्यों हजरत? ये आपके पास है ही नहीं, ये कह दीजिए कि मेरे पास है ही नहीं दलाइल, मैं तो खाली लफबाजी कर रहा था। आप जैसा समझे। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, आपकी बातों से जाहिर हो रहा है, वही आपको बता रहा हूँ हजरत। आप अपनी किताब भेजी हुई, उसके दलाइल नहीं मान रहे हैं, उसकी दलील तस्लीम करने को तैयार नहीं है। बताएं, जो अभी आपने मुझे भेजी है। हेलो, ठीक है बहन, चलिए फिर आप नहीं दे रहे हैं दलील, फिलहाल मैं हजरत आपसे इतना ही कहूंगा कि गुमराह ना करें उम्मत मुस्लिमा को। आला फरमाते हैं, चरवाहे कहलाते हो, भेड़िए ना बनो। वो तो पता ही चलता है कि गुमराह कौन करता है।
وہ تو پتہ چل گیا ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے گفتگو میں آخری اعلیٰ میری حضرت کی بات خارج یہی ہے. آخر یہی ہے کہ آخرت کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں تو میری بات کو شیئر نہ کریں. اللہ ابھی تو آپ نے کہا کوئی گرفت نہیں ہے. ارے حضرت راہ فرار